Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the 8th episode of Web Foundation's Conversations. I'm Anum Essa, the moderator for today's session and Senior Communications Manager at Web Foundation. A little announcement that the previous episodes of Conversations are available at Facebook as well as on our YouTube channel. So please do subscribe and watch. Our topic for today is State of Affairs of Sports Facilities at the Pakistani universities. And our today's conversation will revolve around the quality of sports facilities available at the universities and how the Higher Education Commission of Pakistan facilitates universities and students in this area. Now, let me introduce you to our guest for today. Our first guest is Muhammad Abdullah, who is well known in the field of rugby. Abdullah has served Pakistan rugby for the past several years, nationally and internationally. Abdullah has been performing his duties currently as the head of sports and activities at University of Management and Technology, Lahore, and he's been doing so for the past 7 years. Abdullah has unleashed the potential of the youth, especially from the tribal areas of Pakistan, and provided them with a platform in sports and extracurricular activities. And to gauge the situation of sports facilities at the universities, we have invited Dewan Meghwar with us, originally from Mithi Parker. Dewan is currently pursuing his bachelor's in business administration, majoring in marketing from Sakkar IBA University, Sakkar Sindh. Dewan is an accomplished student and has availed fully funded talent hunt program scholarship throughout the 4 years of his bachelor's degree. I welcome you, Abdullah and Dewan, to our today's discussion. And we will start off with the questions. And I'll start today's discussion with you, Abdullah. And my first question would be, if you could tell me a bit about your role at the university and what do you do and how do you facilitate students and teachers at the university under your current role? Thank you very much, Anum, for inviting me to discuss the sports facilities and the infrastructure which the students of different universities are getting from their institutes. I am currently managing all sports and extracurricular activities in University of Management and Technology since last 7 years. And we have more than 54 men and women teams which are participating in HEC All Pakistan Inter-University tournaments being organized by different other universities, sometimes in Lahore, sometimes in Islamabad, sometimes even in IB Sakkar. And we have more than 60 clubs and societies which caters English speaking union, Model United Nation, debating, music society, fine arts, calligraphy. So the list goes on. Okay, thank you, Abdullah. Now, coming towards you, Dewan. As a student, what kind of sports facilities are available to you at the university and how frequently do you avail them? Sakkar IB University has been, completely involved in the advancement of sports activities, particularly for the betterment of students. The mission of Sakkar IB University has been to promote the well-being of students as well as the, physical and all the mental strength of the students. Accompanied by the studies, they are also focusing on state-of-the-art facilities for the students. We have currently established the cricket ground, football ground, and a badminton court as well. They are completely equipped with modern technology, and they are also equipped with product lights, etc. So, coming towards the special department of Sakkar IB University that promotes the education in sports, we have physical education department that is partnering with Higher Education Commission in order to bring about the sports activities and particularly the degrees in the physical education department. So Sakkar IB University has been, completely equipped with all the equipment, the facilities for promoting the sports, all the major sports across the country that has been played, from tennis to rugby to cricket to football. So I think Sakkar IB is the best place for students to enjoy the sports.
Thank you, Diwan. Now, Abdullah, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस किस्म की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अवेलेबल है आपके स्टूडेंट्स को एट द यूनिवर्सिटी, आर यू सेटिस्फाइड विद द फैसिलिटीज और कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं उन फैसिलिटीज के? अब्दुल्ला, मैं आपसे जानना चाहूंगी पहले। थैंक यू अनम। देखें, जब मैं इसी यूनिवर्सिटी में बीबीए कर रहा था 10 years ago, तो यूएमटी में शायद उस तरह से हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैं रग्बी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था एज अ कैप्टन नेशनल टीम को। तो अब मुझे जो रग्बी की फैसिलिटीज या यूएमटी में चाहिए थी, वो उस टाइम जो भी हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे या जो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट थी, वो हमें फैसिलिटेट नहीं करते थे। तो मेरा यहाँ पे आने का पर्पज ही ये था, जो चीजें मुझे नहीं मिल सकी वो मैं जो यूएमटी के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको प्रोवाइड करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 7 years में हमारे पास पूरे पाकिस्तान में सारी यूनिवर्सिटीज में अराउंड 237 यूनिवर्सिटीज में से जो अभी हमने यूएमटी में सबसे पहला आउटडोर क्रॉसफिट सेंटर बनाया है, जो कि किसी भी और यूनिवर्सिटी में नहीं है। हमारे पास इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एंड द बेस्ट थिंग इज कि जो टॉप ऑफ द लाइन कोचेज हैं सारी स्पोर्ट्स के, वो यूएमटी के एम्प्लॉय हैं। इफ यू टॉक अबाउट हॉकी, तो हमारे जो ओलंपियन है रेहान भट्ट, वो फैमिली हमारी हॉकी की कोच है। तो लास्ट 36 ईयर से जो पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन है आसिम कुरैशी टेबल टेनिस के, वो हमारे टेबल टेनिस के कोच हैं। जो लास्ट 13 ईयर से बैडमिंटन के कोच हैं काशिफ सुलैरी, वो हमारे बैडमिंटन के कोच हैं। तो हमारी जो टॉप ऑफ द लाइन जितने भी हमारे पाकिस्तान के नेशनल हीरोज एथलीट्स हैं, द गुड थिंग इज दे आर पार्ट ऑफ आर यूनिवर्सिटी। तो उससे हमें फायदा क्या हुआ है कि हम जो एनुअली स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप पे मैं डिफरेंट पाकिस्तान के एरिया से टैलेंट हंट करके उन लोगों को लाहौर लेके आता हूँ, और उनको ना सिर्फ हम उनकी ट्यूशन फी सिर्फ वेव करते हैं, देयर अकोमोडेशन इज फ्री, देयर फूड इज फ्री, देयर ट्रांसपोर्टेशन इज फ्री, देयर एजुकेशन इज फ्री। तो वो बच्चे 4 साल के लिए फिर हम उनके कस्टोडियन होते हैं। वो यहाँ पे आएंगे, फ्री पढ़ेंगे, फ्री रहेंगे, फ्री खाएंगे, फ्री सब कुछ। उनकी जो डाइट प्लान्स हैं वो सारा कुछ वो हमने ही कैटर करना है, मैंने, हमारी जो टीम है, जो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हम अभी पूरे पाकिस्तान में नंबर 6 पे रैंक कर रहे हैं यूएमटी। हमसे कुछ यूनिवर्सिटीज यूसीपी हमसे बेहतर है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी हमसे बेहतर है, उनके पास अच्छी फैसिलिटीज हैं, वो ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम एक्चुअली स्क्रैच से स्टार्ट हुए थे, तो विद इन द स्पैम ऑफ 7 years हम नंबर 6 पे आ गए हैं। जैसे आईबीएस अखर का ये स्टूडेंट है देवान, तो अभी इन्होंने टेबल टेनिस ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी इन्होंने होस्ट की थी आईबीएस अखर में, तो जिसमें मेरी टीम यूएमटी 5th आई है ओवरऑल। एक्चुअली होता यह है कि आप जो भी कंपटीशन, जो भी गेम होती है पाकिस्तान में, उसमें हर जोन से 2-2 टीम्स विन करके ऊपर फिर फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करती हैं। तो जो टॉप 16 टीम्स होती हैं आउट ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज, तो वो फिर फाइनल राउंड खेलती हैं। वो कभी आईबीएस अखर में होता है, कभी इनके पास ही शेख हयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर है, फिर खैरपुर यूनिवर्सिटी है, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खैरपुर है। तो मेरा विजन ये था कि जितने भी एथलीट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में, वो चित्राल से हैं, वो गिलगित से हैं, वो हुंजा से हैं, वो हजारा से हैं, मेरा विजन ये था कि इनको वहां पे ये सब चीजें फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो ना सिर्फ हम ये देखें कि अगर हम एक स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप पे बच्चे को यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, तो वो नेशनल कलर होल्डर होगा तो ही हम इसको स्कॉलरशिप देंगे। क्योंकि आप देखें 18 ईयर्स का बच्चा जो हुंजा से आ रहा है या गिलगित से आ रहा है, वो नेशनल कलर होल्डर नहीं हो सकता। डजंट मेक एनी सेंस। तो हम वहां से उसको लेते थे, उसको यहाँ पे ट्रेन करते थे, ग्रूम करते थे। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह यूएमटी के स्टूडेंट्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी खेल रहे हैं। हमारे जो मेरे यूएमटी की स्टूडेंट्स हैं जो एचईसी की टीम्स में भी हैं, जो एचईसी इंटर यूनिवर्सिटी में भी मेडल्स ले रहे हैं, फिर एचईसी को नेशनल चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास को अराउंड 350 प्रोफेशनल एथलीट्स हैं यूएमटी में, जो सिर्फ आए ही इसीलिए हैं कि उन्होंने एकेडमिक्स के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स को भी लेके चल रहे हैं। Thank you, Abdullah. Diwan, I'd asked the same question from you.
अभी आपने मेंशन किया कि you are very much happy and satisfied with the facilities available at the universities. Do you think there are some negative aspects, or there could be some drawbacks that can be worked upon? जी ऑफ कोर्स देखें सखर आईबीए की एक सोसाइटी है स्पेशली डिजाइन फॉर प्रमोटिंग दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सखर आईबीए स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर सोसाइटी तो इस सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे हमेशा जैसे इवेंट होते रहते हैं जो कि स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए किए जाते हैं अभी एनुअली हमारे पास स्पोर्ट्स गाला भी होता है उसके अलावा सखर आईबीए सुपर लीग भी होती है जिसमें क्रिकेट के मुकाबले होते हैं तो अगर नेगेटिव्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स के पास अब मौके तो हैं गेम खेलने के लेकिन नेगेटिव्स भी हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को इतना टाइम नहीं होता या स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को मैनेज नहीं कर पाते उनके पास मेंटल प्रेशर इतना होता है कि वो एकेडमिक्स में ही फंसे रहते हैं So this is kind of drawback that is prevailing here at Sakarya because Sakarya is always, more concentrating on its academics. Academics is its power. So this is the major drawback. Other than that, coming towards the infrastructure, I would say a little bit drawback is environmental condition because Sakarya is located in an area where temperature goes to some 50 degrees, 49 degrees, and currently it is happening here. And another drawback I would say for Sakhar IBA is it is very located in a narrow, physical environment. The plot is very small. That's why cricket ground as well as football ground has small spaces. And if some other, sports people are coming over there and they use the ground, then there is the lack of spaces for cricket as well as football and other games. So these are some negatives as well. Thank you, Dewan. Coming back to you, Abdullah, आप अगर मुझे थोड़ा सा HEC policies के बारे में बताएं, and there's this one organization or a board known by the name of Pakistan University Sports Board. इनका और HEC का क्या रोल होता है in making sure that the universities are given the best of the best facilities in terms of sports and extracurricular activities? और दूसरा ये कि do you regularly coordinate with them? क्या mechanism है basically? How does it work? देखिए अनम, ये जो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड है ना, इसमें मुझे पर्सनली तो इनकी जो पॉलिसीज हैं या प्रोसीजर्स हैं उनके साथ मैं उस तरह से मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अब जनरेशन जी आ गई है तो इसके चैलेंजेस आज से 10 साल पुरानी वाली पॉलिसीज के साथ हम नहीं उसको रिलेट कर सकते, क्योंकि जो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड है इसकी जितनी भी पॉलिसीज बनी थी ये 2012 में बनी थी, उसके बाद रिवाइव नहीं हुई थी। इनका जो डेली अलाउंस है एक प्लेयर के लिए वो भी वही है जो 2012 में दिया जाता था। और अब आपको पता है आजकल के रेट्स में एक एथलीट जो मॉडरेट एथलीट है वो 300 रुपीज पर डे में वो क्या डाइट लेगा और क्या परफॉर्मेंस देगा। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो पॉलिसीज हैं ये चीजें इस तरह से चलती हैं कि पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड एक HEC एनुअल जनरल मीटिंग अनाउंस करता है नॉर्मली इन अगस्त एवरी ईयर। तो उसमें जो सारे पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज के डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं उस AGM के। तो उसमें जो हमारी लास्ट ईयर की प्रोग्रेस होती है एक तो वो डिस्कस होती है, उनमें जो हमारे कंसर्न्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। जो जैसे अभी मिस शाइस्ता थी जो देख रही थी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अब पता नहीं इनका कोई चेयरमैन आ गया कि नहीं HEC का। तो उसके बाद फिर HEC पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड हमें एक एनुअल प्लान देता है जिसमें 62 गेम्स होती हैं एनुअली, जिसमें 35 मेन की स्पोर्ट्स हैं और 27 आई गेस फीमेल की स्पोर्ट्स हैं। तो ये टोटल 62 गेम्स का एक एनुअल प्लान HEC के प्लेटफॉर्म से सब यूनिवर्सिटीज को मिलता है, जिसमें अगर मैंने कंसर्न शो किया है कि मैं ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप UMT होस्ट करेगी तो वो UMT होस्ट करेगी। अगर उसका जोन हम होस्ट करेंगे तो वो HEC जोन हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए दे देगी।
उस जोन से फिर 2 टीम्स निकलेंगी, फिर फाइनल राउंड जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर होस्ट करती है तो फाइनल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में होगा। और इस होस्टिंग के जोन हो या फाइनल हो, एचईसी हमें एक लमसम एक अमाउंट रीइंबर्स हमें करता है आफ्टर हमारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं। लेट से अगर वो 100 रुपीज का एक्सपेंस है तो वो 60 रुपीज उसमें से एचईसी हमें रीइंबर्स कर देता है आफ्टर एवरी 4 मंथ्स। तो इसी तरह ये सितंबर एंड या अक्टूबर स्टार्ट से ये हमारा एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स का कैलेंडर स्टार्ट होता है और ये मई में जाके अराउंड मई या कभी मई से पहले हमारा ये एनुअल कैलेंडर जो है खत्म हो जाता है सारी स्पोर्ट्स का। तो उसमें फिर एक जनरल ट्रॉफी विनर होता है कि जी जो ओवरऑल सारी गेम्स में जिसके ज्यादा मेडल्स हैं, जिसके ज्यादा पॉइंट्स हैं, जिसकी ज्यादा पोजीशंस हैं, वो जनरल ट्रॉफी विनर होता है। फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसी तरह ओवरऑल सारी गेम्स के कंबाइंड मार्क्स से एक रैंकिंग निकलती है यूनिवर्सिटीज की। और जो एचईसी या पीयूएसबी है, एज फार एज देयर सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो सिर्फ एचईसी या पीयूएसबी सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज को ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एचईसी या पीयूएसबी किसी भी किस्म की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देता जिससे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सके। Thank you, Abdullah, for the detailed response. Now, Diwan, I would ask you this question about the university administration and the academic staff. In your experience, does the administration support or encourage the students to take part in extracurricular activities? Or, as you mentioned earlier, that the university usually focuses more on the academic bit of, of a student's life, right? So in that regard, how much support do you receive from the administration, or does your timetable even allow you to, participate in such activities? How is the situation? Thank you. I think this question is a bit tough to answer because there are, two interests. For example, the administration's interest is to import the policies that are prevailing over the university. For example, if I, share my own experience, I participated in any sports gala. So if I was, going to any sports activity or the sports day that was reserved for my game, then I had to sacrifice for my attendance. So they were not, cooperating in attendance policy. So that was the main concern over there. So I think they are eventually supporting the students, but they are not supporting on the cost of the attendance, or they are not supporting in the sense that they should be, missing their classes. So I think this is not a good policy that students, join the sports event on the cost of their attendance. अटेंडेंस को लूज करके वो नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतनी एब्सेंसेस नहीं होती कि वो अपनी स्टडीज के साथ साथ पूरा सेमेस्टर मतलब कंप्लीट भी करें, और जो सेमेस्टर में 7 एब्सेंसेस होती हैं वो मतलब एक आवर की एक लगती है। तो आई थिंक दैट इज वेरी लो एंड स्टूडेंट शुड बी गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स। रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट की, so I think they are very supportive in terms of funding. The students are always, encouraged to participate in the events. For example, Sakhar IBA की टीम जो है वो पिछले सालों में लंच जा चुकी है, वो IBA कराची भी जा चुकी है, तो वो completely सपोर्ट करते हैं फाइनेंसेस में या उनकी जो उधर रहाइश वगैरह होती है या जो भी होता है सिस्टम, तो वो करते हैं सपोर्ट, बल्कि encourage भी करते हैं। I think. Thank you, Dewan. Abdullah, now the next question is again from you. ये common practice है यूनिवर्सिटी में कि जब यूजुअली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उनको यूजुअली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ जो है वो लिंकेजेस डेवलप करने में हेल्प की जाती है फॉर ऑफ कोर्स देयर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड देयर करियर डेवलपमेंट. However, if we look at students who want to perhaps pursue or want to become professional athletes or pursue a sports career, इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी उनको कितना फैसिलिटेट करती है और क्या प्रोग्रेशन होती है कि जब वो यूनिवर्सिटी की टीम में खेल रहे हैं तो हाउ डू दे प्रोग्रेस टू द नेशनल और द इंटरनेशनल लेवल? डज द यूनिवर्सिटी सपोर्ट देम इन एनी वे?
अच्छा अनम, ये अच्छा आपने थैंक यू फॉर पॉइंटिंग अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसमें ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, हमारे 7 स्टूडेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स बेस पे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में, वॉरेक में, जर्मनी की टॉप आईटी यूनिवर्सिटीज में, जिनका मेरे थ्रू स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ है, उनको हमने सपोर्ट इस तरह से किया है कि एक बच्चा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मार्शल आर्ट एथलीट्स, वो अगर सवात से मेरे पास आया है तो उसका और लाहौर की लैंग्वेज बैरियर में ही बहुत डिफरेंस है। तो 2 साल उस बच्चे को लग जाते हैं इंग्लिश समझने में, पढ़ने में। तो उस 2 साल के बाद उसकी फिर उसने अब साथ में स्पोर्ट्स भी करनी है, एचईसी के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट भी करना है। तो जब वो एचईसी में गोल्ड मेडल लेके आता है तो वो एचईसी को रिप्रेजेंट करता है एक नेशनल चैंपियनशिप, लेट्स से नेशनल वुशु चैंपियनशिप या नेशनल टाइकोंडो या नेशनल कराटे या नेशनल जूडो चैंपियनशिप। और वो जब नेशनल्स में वारदा के साथ, आर्मी के साथ, पाकिस्तान पुलिस के साथ, रेलवेज के साथ कॉम्पीट करके फिर वहां से भी मेडल लेता है, तो वो उसको एचईसी मंथली स्टाइपेंड एक ऑफर करती है, जो कि फिक्स्ड अमाउंट है पाकिस्तान यूनिवर्सिटी सपोर्ट्स बोर्ड की, कि एनुअली लेट्स से 60,000 पर एनम उस स्टूडेंट को मिलेगा जो एचईसी को रिप्रेजेंट करेगा नेशनल चैंपियनशिप में। और उसकी कोई ब्राउन, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल आता है तो उसको उसी मेडल्स के अकॉर्डिंग उसको स्कॉलरशिप एचईसी ऑफर कर देता है, जिससे उस एथलीट को थोड़ा सा पुश मिलता है कि अदर देन एजुकेशनल फैसिलिटीज या मेरा, मुझे अदर देन माय अकोमोडेशन एंड ट्यूशन फी, मुझे कुछ हार्ड कैश में भी कुछ मिल रहा है एचईसी की तरफ से। तो क्योंकि एज अ यूएमटी या और भी जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, हम हार्ड कैश स्टूडेंट्स को नहीं देते। तो जब बच्चा हमारा, जब उसको थोड़ा सा पुश मिलता है एचईसी से, तो वो उसको फिर लगता है कि मैं नाउ आई कैन बी प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ जूडो या वुशु या टाइकोंडो, व्हाटएवर ही इज प्लेइंग। तो जब उसके अंदर ये स्पार्क आता है, ये मोटिवेशन आती है कि मुझे एचईसी भी पैसे दे रहा है, मुझे यूनिवर्सिटी भी सपोर्ट कर रही है, तो मैं क्यों ना इसी चीज को लेके आगे अपने स्टडीज में या फर्दर करियर में इसको मैं लेके चलूं। तो वो जब स्टूडेंट फाइनल सेमेस्टर्स में पहुंचते हैं तो वो हमारे पास फिर आते हैं कि जी आप हमें किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, व्हाट एक्स्ट्रा सर्विसेज, व्हाट एक्स्ट्रा कोचिंग फैसिलिटीज यू कैन प्रोवाइड अस, जिससे हम वो जो इंटरनेशनल ईस्ट लंदन या वॉरेक का या जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी के जो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के ट्रायल्स हैं, उस पे जाने से पहले हम उनको कितना ग्रूम कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। तो हम अपने कोचेज को कहते हैं कि इन स्टूडेंट्स के लिए आपने एक्स्ट्रा स्पेशल स्लॉट्स रखनी है और इनको अब यूनिवर्सिटी वाली ट्रेनिंग से निकाल के प्रोफेशनल ट्रेनिंग करानी है, जो एक पाकिस्तान नेशनल लेवल का 3 ट्रेनिंग करता है, ताकि ये कल को जब उधर जाके स्पोर्ट्स ट्रायल्स में अपीयर होंगे तो इनकी सिलेक्शन हो सके। नॉर्मली वो ट्रायल जितने भी यूरोप की यूनिवर्सिटीज हैं वो दुबई में रखती हैं, तो वो वेदर भी हमें सूट करता है, कंडीशंस भी हमारे जैसी होती हैं, तो वो एक हमें एज मिल जाता है बीइंग एज ए एशियन प्लेयर। तो वो बच्चे जब वहां पे, क्योंकि हमारा जो मैट गेम्स है हम उसमें बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान मैट गेम्स में बहुत अच्छा है, जो जिसमें रेसलिंग है, जूडो है, क्योंकि ये वो गेम्स हैं जो हमारे रीजन की हैं, हमारे एरिया की हैं। तो इसमें हम बच्चों को फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हैं कि आप ये हम हमारी प्रोफेशनल सपोर्ट लेके आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाएं। अभी हमने रिसेंटली करियर फेयर कराया जिसमें अराउंड मोर देन 150 कंपनीज उसमें हमारे करियर फेयर में आई हैं। फिर हम समर में करियर वीक कराते हैं पूरे वीक का, जिसमें बच्चे हमारा एडीपी के साथ एक एमओयू है, जो आइल्स के बेसिकली किंग है पाकिस्तान के, वो हमारे बच्चों को फ्री आइल्स और मॉक टेस्ट और आइल्स फ्री ऑफर करते हैं। वो बच्चों के साथ साथ हम प्रिपरेशन कराते रहते हैं, तो कल को फिर उनका अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाता है। थैंक यू अब्दुल्ला। देवान, आपने पहले बात की कि हमने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स के सपोर्ट की बात की व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. Now we're all aware that of course university life comes with its own challenges, especially academics के हवाले से, क्योंकि students undergo a lot of pressure, especially in the exam season. तो आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से आपकी जो एकेडमिक्स है किसी तरह से इम्पैक्ट होती है?
do sports exert any positive or negative impact on your academic performance per se? अच्छा, देखिए स्पोर्ट्स के जो इम्पैक्ट हैं पाकिस्तान में अगर देखा जाए, पाकिस्तान में भी स्पेशली हमारे एरिया में तो ये कहा जाता है कि जो बच्चा ज़्यादा पढ़ता है या जो बच्चा स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम देता है तो वो बहुत मतलब अच्छा कर रहा है या वो एफिशिएंट है अपनी स्टडीज़ में। हालांकि जितने भी डेवलपिंग वर्ल्ड में स्टडीज़ अभी आ रही हैं तो वो कहती हैं कि अभी ये टाइम नहीं है कि आप उनको प्रेशराइज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे स्टडीज़ को। हालांकि अभी जो स्टडीज़ हैं उनमें ये कहा गया है कि वो बच्चा स्मार्ट वर्क करे और उसके साथ साथ एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ लाजमी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे की ना सिर्फ मेंटल ग्रोथ होती है बल्कि फिजिकल भी उसकी स्ट्रेंथ रहती है। तो आई थिंक पाकिस्तान में या सखर आईबीए में ऐसे ही कुछ मतलब शॉर्ट कमिंग्स हैं जो कि हैं प्रिवेल करती हैं। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की अगर बात की जाए तो एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अपनी स्टडीज़ की तो पहले मैं शुरू में बिल्कुल भी गेम नहीं खेलता था और उसका इम्पैक्ट ये था कि आई यूज टू फील somewhat lazy and I didn't feel myself active. तो जब मैंने स्टार्ट किया गेमिंग तो I think I have gained a lot of active energy in myself that I can go with fresh mind in my class. I can focus on my studies more. I can recreate myself. But there is always a line. For example, if you are crossing the line and you are going to play all the day the games and engaging all the activities, then this is going to be really tough. For example, at the university like this IBA and other universities that are top universities here. So I think there is always creating the balance between the two activities. For example, a student is going to manage his sports as well as the studies that is going to work here. Thank you, Dewan. Abdullah, हमने ये तो बात कर ली कि स्टूडेंट्स को किस किस्म की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और किस किस्म की सपोर्ट अवेलेबल है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम द स्पोर्ट्स बोर्ड। व्हाट अबाउट द टीचर्स एंड द यूनिवर्सिटी स्टाफ, उनके लिए क्या इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? आर दे allowed to use the facilities that are available to students or is there जी बिल्कुल, जी हमारी जो जिम है या हमारा जो आउटडोर क्रॉसफिट सेंटर है वो हमारे स्टाफ और फैकल्टी के लिए भी है, लेकिन हमने टाइम स्लॉट्स थोड़े डिफरेंट रखे हुए हैं। जो स्टूडेंट्स के मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट और फीमेल फैकल्टी और मेल फैकल्टी, इनकी टाइमिंग्स के स्लॉट डिफरेंट है, लेकिन ये फैसिलिटी सबके लिए है। और बल्कि हम अदर देन दिस हम एनुअली एक स्टाफ फैकल्टी मेल फीमेल एक स्पोर्ट्स गाला भी कराते हैं, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो हर साल हम कराते हैं, जिसमें इंडोर आउटडोर दोनों गेम्स होती हैं, इंक्लूडिंग चेस, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, टग ऑफ वॉर, क्रिकेट, फुटबॉल। और एज अ स्पोर्ट्स मैनेजर आप क्या किस किस्म का रुझान देख रहे हैं आने वाले स्टूडेंट्स में? आर द स्टूडेंट्स मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, मतलब विलिंग होते हैं पार्टिसिपेट नो करने में दे या आर नॉट। नहीं, आप हमारी स्पोर्ट्स देखें, ओवरऑल हमारी स्पोर्ट्स बहुत पीछे इसी वजह से चली गई हैं क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट लूज कर गए हैं, और वो इस वजह से कर गए हैं क्योंकि हमारी जो ग्रास रूट लेवल है ना, एक्चुअली हमारी ग्रास रूट लेवल पे ही स्पोर्ट्स खत्म हो गई है। हमारे स्कूल्स देखें, जो पब्लिक स्कूल्स थे आज से 10-15 साल पहले अगर आप देखें तो उनमें एक गेम्स लेसन हुआ करता था जो कि ट्वाइस अ वीक होता था, जिसमें बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी था। फिर वहां से वो चीज खत्म हुई, फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स खत्म हुए, फिर इंटर बोर्ड कॉम्पिटिशन्स खत्म हुए, और अब सिर्फ हमारे मुल्क में सिर्फ इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स रह गए हैं। तो उस कंपटीशन का क्या लेवल होगा जिसके नीचे ग्रास रूट पे कुछ है ही नहीं। या तो अगर हमारे पास ग्रास रूट से प्लेयर आ रहे हो तो जो कंपटीशन है वो एक हेल्दी कंपटीशन होते हैं। अब तो किसी भी गेम में अगर टेबल टेनिस का एक, लेट्स से पाकिस्तान में टेबल टेनिस का एक चैंपियन है तो वो लास्ट 36 ईयर से वही एक ही टेबल टेनिस का चैंपियन है। तो आप ये देख लें कि अगर वो 55 ईयर्स की एज में करंट पाकिस्तान का नेशनल चैंपियन है तो हमारे इस मुल्क की स्पोर्ट्स का क्या हाल है कि नीचे से कुछ आ ही नहीं रहा जो ऊपर जो उसको एक 55 ईयर्स के आदमी को नेशनल चैंपियन
नेशनल चैंपियन ना बनने दें। तो हमारी ग्रास रूट से स्पोर्ट्स खत्म होगी। तो जब ग्रास रूट से खत्म होगी तो ओवरऑल वो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आती ही नहीं है स्पोर्ट्स। Yes, Dewan, would you like to add something to it? जी, तो जैसे कि अब्दुल्ला ने बात की कि पॉलिसीज का इशू है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ग्रास रूट लेवल से एक बच्चा जो आ रहा है उसका कोई प्रैक्टिस नहीं है, उसका कोई इंक्लिनेशन नहीं है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ, तो दिस इज गोइंग टू बी ए रियल चैलेंज हियर इन आवर सोसाइटी। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जापान की, तो वो ग्रास रूट लेवल से मतलब 10वीं जमात तक स्पोर्ट्स एक्टिविटी और एथिक्स को बिल्कुल मैंडेटरी करार देते हैं और उनके दूसरे जो भी सब्जेक्ट हैं उनको छोड़ के ये सब्जेक्ट डेली बेसिस पे उनके यहाँ प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान में भी एक ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है कि बच्चों को शुरू से इंटरेस्ट डेवलप किया जाए और करिकुलम भी आई थिंक इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट डेवलप करने में, और करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए गेम्स को। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू दीवान। अभी हम आप दोनों से इनफैक्ट मैं इम्प्रूवमेंट्स के बारे में पूछूंगी इन माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट अब्दुल्ला, अभी हमने सुना कि गवर्नमेंट और एचईसी ने एक कामयाब जवान स्पोर्ट्स एकेडमिक अकेडमीज नेशनल यूथ गेम्स इनिशिएटिव जो है ना वो अनाउंस किया था इन अक्टूबर 2021 लास्ट ईयर। Could you please tell me a bit about that initiative और वो यूनिवर्सिटीज को या फिर हमारी जो यूथ है उसको कैसे फैसिलिटेट कर सकता है कि वो एक स्पोर्ट्स को एक एज अ पॉसिबल और सब्सटैंशियल करियर पाथ चूज करें? अगर आप अच्छा देखिए जी, पाकिस्तान में जो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि हम किसी भी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते। हमारा कोई भी जो भी प्रोजेक्ट है वो सस्टेनेबल नहीं होता। अब अक्टूबर में कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव स्टार्ट हुआ जिसमें इस्लामाबाद में सारी यूनिवर्सिटीज आई, वो अराउंड 200 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया। उसमें से कुछ ऐसी थी जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कराची से इस्लामाबाद आ गए, कुछ ऐसी थी जिनकी सीरियस टीम्स थी। एक क्रिकेट की टीम अच्छी थी तो साथ 2 टीम्स वैसे आ गई एंटरटेनमेंट के लिए, और उनके साथ जो ऑफिशियल्स थे वो भी प्रोफेशनल नहीं थे। हमारा कोई 75 स्टूडेंट्स का डेलीगेशन गया था कामयाब जवान स्पोर्ट्स प्रोग्राम में, और उसमें 36 यूनिवर्सिटीज थी बॉक्सिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो हमारी ओवरऑल ऑल पाकिस्तान में 3rd पोजीशन आई थी बॉक्सिंग में यूएमटी की। उसके बाद जूडो में हमारे 6 मेडल थे, 4 मेन 2 विमेन के। तो एथलेटिक्स में भी इसी तरह हमारे मेडल थे। इसी तरह हमारे हैंडबॉल नेटबॉल में भी पोजीशन थी। तो बात करने का मकसद ये है कि एक प्रोग्राम कामयाब जवान स्पोर्ट्स प्रोग्राम जैसे यूथ फेस्टिवल, आपको याद होगा आज से 10 साल पहले एक पंजाब में बहुत जोरों शोर से हुए थे, जिनमें बहुत पाकिस्तान के बहुत बड़े जो लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और काफी अच्छी हैंडसम अमाउंट उस पर इन्वेस्ट हुई। उस पे हमने एथलीट्स को यूनिफॉर्म्स भी दिए, फूड भी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन एक वन टाइम एक्टिविटी से नेशन बिल्डिंग या नेशन चेंज की बात नहीं की जा सकती। अब वो कामयाब जवान प्रोग्राम हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हम कामयाब जवान स्पोर्ट्स एकेडमीज बना रहे हैं, कामयाब जवान मरकज बन रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, जिनकी यूनिवर्सिटीज को पब्लिक यूनिवर्सिटीज को ग्रांट भी मिली है। तो उन जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज को उन स्पोर्ट्स की जो स्पोर्ट्स की ग्रांट मिली है, कामयाब जवान स्पोर्ट्स मरकज की ग्रांट मिली है, उन यूनिवर्सिटीज की लास्ट 10 ईयर्स में स्पोर्ट्स में क्या प्रोग्रेस है। अगर एक यूनिवर्सिटी कोई भी XYZ जिसकी ना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन है, ना उनकी स्पोर्ट्स की टीम्स हैं, ना उनकी स्पोर्ट्स का डायरेक्टरेट है, ना उनके पास डायरेक्टर स्पोर्ट्स वो है जो खुद प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है, आप उस यूनिवर्सिटी को एक पब्लिक फंड्स दे रहे हैं, तो आप उससे आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई ओलंपियंस निकालेगा उस यूनिवर्सिटी से? वो पैसे जाया हो जाएंगे, वो एक्टिविटी हमारी फ्लॉलेस चली जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो जो मेरी भी ये कामयाब जवान प्रोग्राम के जो बेसिकली फाउंडर थे उस्मान डार साहब, मेरी उनसे पर्सनली भी काफी बार मुलाकात हुई और मैंने उन्हें भी यही बात समझाई थी कि आप उन यूनिवर्सिटीज को लें जो जैसे लम्स है, इट्स ऑल्दो लम्स हमारा कंपेटिटर है, लेकिन जो चीज जिसकी अच्छी है वो अप्रिशिएट करनी चाहिए। लम्स इज हैविंग द बेस्ट फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी इन पाकिस्तान,
और लम्स हर साल एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेस्ट कराता है जिसमें स्विट्जरलैंड से, स्पेन से, डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से एथलीट्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक्चुअली बात है एक्सपोजर देने की। जब तक आप अपने एथलीट्स को, अपने प्लेयर्स को एक्सपोजर नहीं देंगे, अब एक ये सिंध की बात है, एक जूडो की सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में एक इन्होंने एकेडमी बनाई है जूडो की। तो जो फिजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि जूडो एक फिजिकल कांटेक्ट गेम है, और जो टेम्परेचर टंडोजाम का है, क्या जूडो वहां पे फिजिबल है जूडो की एकेडमी बनाना? और अगर जूडो की वो एकेडमी बन गई है जिसमें पब्लिक, जिसमें हमारे बड़े हैंडसम फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, तो उससे हमें आउटकम क्या मिल रहा है? उससे हमें जीरो आउटकम है। वो 6 महीने के बाद, साल के बाद, वो आपकी जो फैसिलिटी बनेगी वो भी, जैसे पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तो है, कुछ स्पोर्ट्स मैनेजर नहीं है, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, कोई स्पोर्ट्स की पॉलिसी नहीं है। एक्चुअली ये गैप, जो मैं जिस गैप पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ये गैप उस तरह हम फिल कर सकते हैं कि जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, इन दोनों को कंबाइन करके एक पॉलिसी निकाली जाए, तो हम इस गैप को फुलफिल कर सकेंगे। नहीं तो ये सारी जिंदगी गैप में फुलफिल हो सकेगा। थैंक यू अब्दुल्ला। अभी आपने गैप की बात की और आपने बताया किस तरह से कुछ पॉलिसीज में मतलब फ्लॉज हैं विच नीड टू बी वर्कड ऑन। सो एज पार्ट ऑफ माई लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और दीवान दोनों से पूछूंगी। दीवान, पहले अगर आप मुझे आंसर करें कि इन योर ओपिनियन अभी अगर हम करंट सिचुएशन को देखें, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड not only at your university but at the other education institute as well, so that more and more students are inclined towards sports and they think of sports as a substantial career option. So kya improvement ho sakti hain? If you could talk about talk from a student's perspective, and then I'll come to Abdullah and he would share his opinion with us. So Dewan, over to you. First of all, I think system का issue है हमारे पास। ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को इंकरेज करे, ना कि डिस्करेज करे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इधर स्पोर्ट्स के इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ तो मुझे वो फील नहीं होता कि मैं अपनी स्टडीज़ या अपनी क्लास को छोड़ के एक स्पोर्ट्स इवेंट में जाऊँ या पार्टिसिपेट करूँ। और उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं। हमारे पास तो फिर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सिंध में या दूसरे भी मतलब जो प्रोविंसेस हैं उनमें majority of the universities don't have the infrastructure, don't have the facilities to participate their students in the different camps. So I think grassroots level पे जो issue है वो system का है, policies develop करने का है, और उसके बाद आ जाता है I think हमारे पास जो lacking है वो है कोचिंग की। आई थिंक कोचिंग स्टाफ नहीं है स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए कोई गाइडेंस नहीं है कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकें अपनी गेम। और आई थिंक दीज आर द टू मेजर चैलेंजेस टू मी एज ए स्टूडेंट। थैंक यू दीवान। ओवर टू यू अब्दुल्ला, अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट्स की बात कर सकें और क्या किस तरह से हम बेहतरी ला सकते हैं करंट सिचुएशन में। वो मैंने पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब तक स्कूल्स में स्पोर्ट्स नहीं आएगी, हम नेशनल लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत अच्छे एथलीट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और अगर स्कूल्स में भी ट्वाइस अ वीक के गेम्स लेसन हो, दैट वुड बी इनफ। नहीं तो हम स्पोर्ट्स एकेडमीज जो हैं, जैसे हमने यूएमटी में 6 ईयर से 16 ईयर्स की स्पोर्ट्स एकेडमीज, हमारा एनुअल एक प्लान है जो हम हर समर ब्रेक में इसको रन करते हैं, और जिसमें हमारे पास बड़े अच्छे नंबर्स आते हैं सारी गेम्स में। तो 6 ईयर से 16 ईयर्स की एकेडमीज जितनी भी पाकिस्तान में डेवलप हो सके हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो दैट इज द राइट एज ग्रुप टू स्टार्ट स्पोर्ट्स। तो हम जाके बच्चे को जिस एज ग्रुप पे पकड़ते हैं उस एज ग्रुप में, क्योंकि उसको फिर उस तरह ट्रेन ग्रूम करने के लिए टाइम भी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी हैबिट्स डेवलप हो चुकी होती हैं कि रात को लेट सोना है, सुबह लेट उठना है। तो जब कोच एक प्लेयर को कहेगा कि भाई सुबह 9 बजे मैच है तो आपने 8 बजे सो जाना है, तो उसकी हैबिट्स 18-19 साल उस तरह से नहीं डेवलप हुई होती जो एकदम वो चेंज कर सके। और इसके अलावा हमारा जो करिकुलम है, स्पोर्ट्स करिकुलम, वो हमें डिजाइन करने की बहुत जरूरत है कि हमारे पास एक नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स का करिकुलम डिजाइन हो, जो हम स्कूल में, कॉलेजेस में, फिर यूनिवर्सिटी में 1 क्रेडिट आवर या 2 क्रेडिट आवर या 3 क्रेडिट आवर के कोर्सेज हम लॉन्च करें, जो जिससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो।
और फिर ये स्पोर्ट्स ही वाहिद चीज है जो एक इंसान की, स्टूडेंट की 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। तो जब हम 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज करना कोई ऐसा मॉडल लेके आएंगे पाकिस्तान में, तो ही हम सक्सेसफुल हो सकेंगे, नहीं तो हम सारा टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। Yes, Dewan, please go forward if you want to add something. जी, जैसे कि अब्दुल्ला ने कहा, आई थिंक हमारे पास स्पोर्ट्स और एजुकेशन को अलहदा करके देखा जाता है, और आई थिंक द नीड इज वी हैव टू सी इट होलिस्टिकली। चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं बहुत, और जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी फिजिकली और मेंटली इतनी हेल्थ और स्ट्रांग बन जाती है कि वो एकेडमिक्स में भी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। हम ये नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि इस बच्चा जो है वो, जैसे कि मैंने पहले कहा, जितना हम टाइम ज़्यादा देते हैं, पाकिस्तान में यही सोचा जाता है कि वो अच्छा पढ़ रहा है या वो ज़्यादा इफेक्टिव काम कर रहा है। हालांकि उसके मतलब के अपोज में ये है सिस्टम कि आप उसको होलिस्टिकली देखें और इंटीग्रेटेड वे में स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स दोनों को चलाएं। आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड। Thank you so much, Dewan, for your conclusive remarks. And thank you to both of you for being part of today's discussion. We have come to the end of our today's episode. And I look forward to speaking with you two again, and Sure, anytime. thank you so much. And I would like to thank our viewers for joining us today. I hope you all have a great weekend. Thank you and Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.